Hello, good morning, students. You know that in previous lecture, I discussed your Newton third law definition. For every actions, there equal and opposite reaction. Means on any one body, if action are exerted, then reaction also act on the body. Which one action exerted? For example, suppose here action is given on whiteboard, then this is action. Which one force applied on the whiteboard? That is action. Whiteboard also exerted one force on our palm. That is known as reaction. Action act on the whiteboard and reaction act on the our palm. Action and reaction act on two different body. You see how this one here, which one example given, their action act on whiteboard and reaction act on our palm. These are also two different body. Another one example here taken. Let us suppose that spring balance A and B. Spring balance B hooks are kept in the fixed object, and another hook of spring balance B fit or make contact with the spring balance A hook, and here we can apply the force. Here we can apply the force. We applied the force on spring balance A, but this action act on the spring balance B. Firstly, this is force act on spring balance B, and this is the action. Action applied on the spring balance A, but act where? On spring balance B. And due to reaction force of this action, spring balance A also give the forces 4 Newton. Then you see, in magnitude also action and reaction both are same. Action and reaction both are same. Application of Newton's third law of motion I will discuss here. Application or examples. Application of Newton's third law of motion. Law of motion. First, which one given? How do we walk? We walking. How do we walk? You see, when we walk, then we force applied on the ground. That is the action. And ground also one force applied on our feet. That is known as reaction. Action act in front part of our feet, and reaction act on back part of our this feet. That's why reaction exert one force in forward direction, which is exerted by the ground, and in this way we walk on the ground. मतलब ये है कि एक्शन जो फोर्स हम लोग लगाते हैं वो ग्राउंड पे लगाते हैं, अब ग्राउंड जो रिएक्शन फोर्स लगाता है वो हमारे फीट पे लगाता है, और फीट जो है कि आगे इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन है व्हाई द गन. सेकेंड, व्हाई द गन रिक्वायल. आप जानते हो जब गन फायर की जाती है तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स
गन जो है कि फायर के बाद पीछे की तरफ जड़ करता है, रिक्वाइल करता है। व्हाई दिस इज हैपन? जब गन को फायर करते हैं लोग तो बुलेट उससे बाहर निकलती है, दैट इज द एक्शन। और आप न्यूटन थर्ड लॉ से ये जानते हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब बुलेट उसमें से आगे जाएगी, वो एक्शन हो गया, तो उतना ही फोर्स जो है कि पीछे भी एग्जर्ट करेगा। तो इसीलिए क्या होती है, गन रिक्वाइल करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर? व्हाई द गन रिक्वाइल? बिकॉज एक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, that's why reaction act on the gun, and due to reaction force on the gun are required. Third here example given. In flying the jet aeroplane and rocket, a flying the jet aeroplane and rockets एक सीधा इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल दूसरा करें। आप एक बैलून लो, एयर उसमें फिल करो, और एयर फिल करने के बाद उसको मौत को रिलीज कर दो, तो देखोगे एयर उसमें से नीचे की तरफ मूव करता है और बैलून ऊपर की तरफ मूव करता है। मीन्स एक्शन, एयर जो उसमें से बाहर जा रहा है वह एक्शन है, और जब एक्शन लगेगा तो उसका रिएक्शन फोर्स भी एग्जर्ट करेगा। तो रिएक्शन फोर्स किस पे लगता है? बैलून पे। एक्शन लग रहा है ग्राउंड पे और बैलून पे रिएक्शन फोर्स लगता है। इसी रिएक्शन फोर्स के चलते बैलून ऊपर की तरफ मूव करता है। सेम थिंग्स यहाँ पे एरोप्लेन, फ्लाई और रॉकेट में भी होता है। रॉकेट में जब हम लोग इसको छोड़ते हैं तो उस समय क्या होती है, रिएक्शन के थ्रू स्मोक नोजल से निकलता है। इसके नोजल से जब स्मोक निकलेगा तो एयर में लगेगा एक्शन, और एक्शन लगेगा एयर में तो एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा रॉकेट पे, और रॉकेट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इतना ही नहीं है, एरोप्लेन फॉर द केस ऑफ बोट एंड द शिप। बोट की हम बात बता रहे हैं। बोट में देखो क्या होता है, ओर्स होते हैं जिससे पानी को हम लोग पीछे धक्का मारते हैं। तो पानी को जो पीछे, वाटर को हम पीछे की तरफ जाके धक्का मारते हैं तो क्या है, वो एक्शन देते हैं। तो एक वाटर भी क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट, फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ। तो जब पानी पे एक्शन लगाते हैं ओर्स के थ्रू तो क्या करता है, वाटर भी एक फोर्स एग्जर्ट करता है बोट पे, और बोट क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। शिप में भी क्या होती है, शिप में हम लोग ऐसा बनाते हैं कि जिसमें उसमें क्या हो, वाटर मूव करता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है। द केस ऑफ हॉस पाइप, आप देखते हो पानी की जो पाइप होती है, मोटी मोटी पाइप होती है, जब उसको आप ऑन करते पानी जाने लगता है तो उस समय हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो वाटर उसमें मूव कर रहा है वो क्या है, एक्शन लगता है। तो एक्शन रहेगा तो उस पर रिएक्शन भी होता है। इसीलिए 3-4 जो है फायर डिपार्टमेंट के जो रहते हैं लोग, वो 3-4 लोग पकड़ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पानी जहां आग लगी रहती है उसको बुझाते हैं। अकेले आदमी रहेगा तो उससे क्या होगा, परेशानी हो सकता है कि उसका रिएक्शन फोर्स जो होता है वह उसको बैलेंस न कर पाए, इसलिए 1-2 लोग और लगे रहते हैं। चाहे थोड़ा सा पाइप पतला रहता है तो एक ही आदमी कंट्रोल कर लेता है। द केस हॉर्स पुलिंग ए कार्ड। आप देखते हो बुलक कार्ड हो गया, हॉर्स कार्ड हो गया, इसमें क्या करता है, हॉर्स एक फोर्स लगाता है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जब फोर्स लगाता है तो वह फोर्स एक्शन हो गया, और उसका रिएक्शन फोर्स जब उस पर लगता है तो हॉर्स जो है कि आगे मूव करता है। जब आगे वो हॉर्स मूव करेगा तो हॉर्स से अटैच क्या है, हॉर्स कार्ड है।
तो हॉर्स जब आगे मूव करेगा तो हॉर्स कार भी आगे मूव करता है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन जितने हमने दिए हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और these are act on action and reaction. We explain on the principle of action and reaction force. Then in Newton third law, no any one numerical problem, only this much. This law, after this action and reaction act on two different bodies and application of this. In related to this, no any one numerical problem. All of you write in your copy fairly. And next and last topic of this chapter, conservation of momentum, I will discuss in next video. Okay, thank you.